अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। Okay, so welcome to the class of microwave engineering. Okay, so before I start today's lecture, any question from previous lecture? नो सर। No, sir. Okay. Okay, so in our last lecture, we started talking about the bandwidth uh, behavior of quarter wave transformer. So and we derived an expression that the magnitude of the reflection coefficient is. So 1 divided by 1 plus 4 Z naught ZL divided by ZL minus Z naught whole square secant square theta, and this expression is under the root. एक्सक्यूज मी सर, ये जी स्क्रीन तो सर हैंग है सर, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ दिखाई नहीं दे रहा जी. What about other students? सर ठीक अभी सही है ठीक है सर। सर। Okay, it means के ये जो प्रॉब्लम है ये आपके एंड के ऊपर है. ठीक है, so maybe आप दोबारा से ज्वाइन कर लें तो हो सकता है कि मसला हल हो जाए. Okay, so let me draw the figure. So the reflection coefficient at the input of this quarter wave transformer, so this section, this is quarter wave transformer. So how much will be the reflection at this point? It is according to this expression, and this theta, it is the length of this quarter wave transformer in terms of wavelength. So if you remember, ये theta को हमने define भी किया था कि theta is related to beta times L. We also so this is the exact expression. So you can clearly see यहाँ पे हमने इसको derive किया था last lecture में, तो ये exactly equal है. But इसकी अगर हम approximated expression find करें based on the criteria के अगर हम हमारे जो frequency है, जिस frequency के ऊपर हम इस quarter wave transformer को analyze कर रहे हैं, अगर वो frequency design frequency के करीब है, ठीक है. So let me write this. When operating frequency is near the design frequency, जिसको हमने f naught से represent किया हुआ है, then so let me also write down कि ये इसकी जो physical length है जिसको हम L से represent कर रहे हैं. So L, small l is the physical length और theta जो है इसकी electrical length है, और electrical length हम इस तरीके से calculate करेंगे. ठीक है, so पहले हम L की बात करते हैं.
So quarter wave transformer is called quarter wave transformer because of the reason कि इसकी length हमने कितनी रखनी है, lambda naught by 4. ठीक. So when frequency is equal to f naught, wavelength will be equal to lambda naught, and we have to keep the length, physical length of this transformer equal to lambda naught by 4. Okay. और lambda L की वैल्यू ये हो जाएगी, एंड अकॉर्डिंगली थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी. तो अगर हम इसमें पुट करें कि हमारे पास बीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाय लैम्डा नॉट हो जाएगी, एल की वैल्यू लैम्डा नॉट बाय 4 हो जाएगी. सो वी विल गेट थीटा इक्वल टू पाई बाय. इस मतलब है कि थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पाई, बिकॉज कीप दिस थिंग इन माइंड कि हम बात कर रहे हैं कि इट इज near design frequency, not exactly equal. That is the reason हम approximation use कर. So what will happen to this expression जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है. So I can substitute the value of theta over here कि अगर theta pi by 2 के बराबर है और इसको हम यहाँ पे substitute कर दें. So secant theta for value of theta equal to pi by 2 will be a very very large number. So based on that हम कहेंगे कि ये जो आपके पास term है, this term will be very very large as compared to 1. So 1 plus a very large number, it means we can exclude 1. Okay. So approximated expression इसकी क्या बन जाएगी, जो हमने लास्ट लेक्चर जो दिया था उसके बिल्कुल एंड पे हमने इसको लिखा था कि अप्रोक्सीमेशन हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, ZL minus Z naught divided by 2 Z naught ZL cos theta, and this expression is valid for theta near pi by 2. So based on that, इसको हमने graphical representation दी थी. If I plot this magnitude along y-axis and theta along y-axis, along x-axis, तो हमारे पास जो relationship आएगी based on, it's obvious कि ये आपके पास एक constant number है. So हमारा जो function है वो cos के हिसाब से vary करेगा. ठीक है. So whatever is the behavior of cos function, this function will show the same behavior. So for theta equal to 0, cos will attain its maximum value, and that maximum value will be equal to this one. So let me assume कि ये वो maximum value जहाँ पे हमारे पास theta की value 0 है. And then as theta increases, so cos function will reduce, and we will get a behavior like this. So we know कि जब आपके पास theta की value exactly pi by 2 के बराबर हो जाएगी, so cos of pi by 2 is 0. So this will be equal to 0 at value of theta equal to pi by 2. When theta further increases from pi by 2, again cos function will start increasing, and as a result we will get this behavior like this. And because cos function is periodic, so this pattern will continue. Okay. So हमारे पास again जब ये पाई हो जाएगा तो again cos जो है maximum value पे पहुंच जाएगा, जो कि exactly ये वाली value. And then after that it will repeat itself, so we just focus within this range, and it is giving us the whole performance of our matching circuit. Now based on this graph we can visually represent कि जो bandwidth की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना. The matching circuit जो हमने डिजाइन किया है, हमें परफेक्ट
जो कंडीशन मिल रही है वो इस वैल्यू पे मिल रही है जहाँ पे ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0 के बराबर होगी। बट ऑफ कोर्स अगर थीटा की वैल्यू π/2 से कम हो जाए या π/2 से ज्यादा हो जाए, यू कैन क्लियरली सी कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो रहा है। So we need to specify what magnitude is acceptable to us. Okay. So अगर मैं एक जस्ट जनरलाइज कर लेते हैं कि हम क्राइटेरिया रख लेते हैं कि अगर तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड इक्वल है गैमा एम के, सो लेट्स अज्यूम कि ये वैल्यू है जो मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। सो विद रिस्पेक्ट टू थीटा ये एक्सेप्टेबल वैल्यू मुझे कब मिल रही है? सो पहले तो मैं अगर इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। सो दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज द क्राइटेरिया और बेंचमार्क जो मैंने रख लिया है कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू जो है इससे कम होनी चाहिए, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये जो मेरे पास एक्सेप्टेबल वैल्यू मिल रही है, ये वो वैल्यू है थीटा की। इस वैल्यू को मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, लेट मी कॉल इट थीटा एम। So when theta becomes equal to theta m, I start getting the acceptable performance from my matching circuit. Similarly, because this is a symmetric figure, so ये जो point है, so हमारे पास जो full period है pi है, तो इस point को हम represent कर लेंगे, ये किसके बराबर होगा? It will be equal to pi minus theta. So now this is this shaded region. ये वो region है जहां पे हमें acceptable performance मिलेगी। Let me इसको मैं इस रेंज को मैं एक सिंबल से डिनोट कर लेता हूँ। लेट्स कॉल दिस एज डेल्टा थीटा। सो हम बैंडविड्थ की जो बात कर रहे थे, विद रिस्पेक्ट टू दिस फिगर, ये हमारे मैचिंग सर्किट की बैंडविड्थ है जिसको मैं डेल्टा थीटा कह रहा हूँ। अब ये डेल्टा थीटा है किसकी इक्वल? सो बेस्ड ऑन दिस अगर मैं इसको डिफाइन करूँ कि ये हाउ मच इज दिस, सो दिस इज π/2 माइनस थीटा एम। और क्योंकि ये जो वैल्यू है और ये है दोनों सिमेट्रिक हैं तो ये बराबर होंगे। तो अगर मैं इसको मैं रिप्रेजेंट कर दूं, इसको मैं अगर कहूँ कि ये π/2 माइनस थीटा एम, ये कौन सा वाला पोर्शन हो जाएगा? ये वाला पोर्शन हो जाएगा, दिस वन। ओके, सो दिस दिस विड्थ मस्ट बी इक्वल टू दिस थिंग, बट बिकॉज दिस डेल्टा थीटा मीन्स दिस होल, तो ये जो इसका अदर पार्ट है इसको मैं इंक्लूड कैसे करूंगा? मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर, सो दिस इज डेल्टा थीटा। जब हम बैंडविड्थ लेटर ऑन फाइंड करेंगे, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई, ठीक है। सो मैं लिख रहा हूँ बैंडविड्थ एज अ function of theta. So this is the result, delta theta equal to 2 multiplied with π/2 minus theta. Now ये जो थीटा एम मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, इसकी वैल्यू क्या होगी? इट डिपेंड्स कि मैंने क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है। मैंने गैमा एम को कितनी वैल्यू इसके लिए मैंने सेट की हुई है। सो वंस आई स्पेसिफाई गैमा एम, फिर मैं थीटा एम फाइंड कर सकूंगा, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट कि ये गैमा एम को हम थीटा एम के साथ कैसे रिलेट करेंगे, ठीक है। गैमा एम को और थीटा एम को कैसे रिलेट करेंगे? फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज दिस एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, ये जो हमारे पास क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर की जो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है कि मैग्नीट्यूड जो है वो इसके बराबर है, ठीक। सो लेट्स अज्यूम कि अगर ये जो मैग्नीट्यूड है ये अगर गैमा एम के बराबर हो जाए, सो ऑफ कोर्स इस एक्सप्रेशन में थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? थीटा एम लिखेंगे,
ठीक है. So let me use this expression. So let me write it down that when magnitude becomes equal to gamma m, theta will be theta m. As a result, अब मैं एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूँ जो हमने मैग्नीट्यूड के लिए फाइंड की है. सो गैमा m divided by 1 plus 4 z naught zl divided by zl minus z naught whole square secant square. और थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, थीटा m लिख दूंगा. ओके, सो लेट मी इसको मैं इक्वेशन ए कह देता हूँ. इक्वेशन ए. So right now I will say from equation A. So now we need to just इस एक्सप्रेशन को हमने रीअरेंज करना है ताकि हमारे पास थीटा एम इन टर्म्स ऑफ गैमा एम एक्सप्रेस हो जाए. ठीक है, थीटा एम इन टर्म्स ऑफ गैमा एम. सो आई एम नॉट गोइंग टू परफॉर्म स्टेप बाय स्टेप. दिस इज सिंपल, एक एक्सप्रेशन है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है. सो एक पहला स्टेप तो ऑफ कोर्स हमें, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को हमने हटाना है. तो वी कैन डू दैट बाय टेकिंग द स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स. ओके, तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर. लेफ्ट साइड पे हमारे पास हो जाएगा गैमा एम स्क्वायर और राइट साइड पे हमारे पास अंडर रूट की जगह सिंपली ये एक्सप्रेशन आ जाएगी. So this is what you get. So what you need to do is rearrange this expression first in terms of secant theta m and then cos theta. So of course इस एक्सप्रेशन में आपको secant थीटा एम नजर आ रहा है, तो पहले ही हमारे पास इसको रीअरेंज करके secant की फॉर्म में अरेंज करेंगे. एंड देन ऑफ कोर्स वी नो द रिलेशनशिप बिटवीन कोसाइन फंक्शन एंड secant फंक्शन. तो फिर इसका हम 1 ओवर सीक्वेंट से ले cos थीटा में आ जाएगा. ठीक है. So this is something which you can try for yourself. This is just simple manipulation. इसमें कोई माइक्रोवेव इंजीनियरिंग इन्वॉल्व नहीं है. मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ कि ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगी. cos theta m will be equal to gamma m 1 minus gamma m whole square under the root 2 times z naught zl divided by zl minus z naught. So this is what we are looking for. जो मैंने लिखा था कि आपने फाइनली इसको, इस एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ कोसाइन फंक्शन एक्सप्रेस कर दिया. सो नाउ जो मैं आपको एक ग्राफ के हिसाब से स्पेसिफाई कर रहा था कि वंस वी स्पेसिफाई, जब आप स्पेसिफाई कर लेंगे, किस चीज को आप स्पेसिफाई कर लेंगे कि गैमा एम कितना होना चाहिए, व्हाट इज द एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट. जब ये आप स्पेसिफाई कर लेंगे तो फिर थीटा एम कैसे फाइंड करेंगे, थीटा एम आप इस एक्सप्रेशन से फाइंड करेंगे. ठीक है. सो z naught zl will be known to us. Gamma m will be specified by us. So once we put this, हमारे पास cos theta m की वैल्यू आ जाएगी और उससे फिर हम theta m निकाल. तो हमारे पास जो बैंडविड्थ का जो लोअर पॉइंट है, लोअर एच आप कह सकते हैं कि हमारे बैंडविड्थ, दिस इज बैंड, तो आप इसको आप लोअर एच कह सकते हैं और ये इसका अपर एच है.
ऑफ कोर्स वंस वी नो थीटा एम, तो अपर एज में हमें सिंपली क्या करना है, पाई माइनस थीटा एम से हमारे पास अपर एज आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन दैट आई वांटेड टू राइट। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम बैंडविड्थ की बात करते हैं, सो बैंडविड्थ नॉर्मली एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और एज अ कम्युनिकेशन इंजीनियर इसका ताल्लुक फ्रीक्वेंसी के साथ है। लेकिन इस वक्त जो हमने बैंडविड्थ को रिप्रेजेंट किया हुआ है वो हमने इन टर्म्स ऑफ थीटा किया हुआ है। दैट इज द रीजन कि आपको अलोंग एक्स एक्सिस थीटा नजर आ रहा है। व्हाट आई विल डू नाउ इज इस एक्सप्रेशन को मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा इन टर्म्स ऑफ एफ, ताकि हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस हम एफ को डिफाइन कर सकें, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा भी हुआ है कि दिस इज बैंडविड्थ एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं बैंडविड्थ एज अ फंक्शन ऑफ एफ, ओके। सो नाउ bandwidth in terms of f. So all I need to do is हमने फाइंड करना है कि थीटा का f के साथ क्या रिलेशनशिप। वंस वी नो दैट रिलेशनशिप, फिर हम इजिली इस रिजल्ट को इन टर्म्स ऑफ f एक्सप्रेस कर देंगे, ठीक है। सो दिस पहला काम नहीं करना है कि थीटा का f के साथ क्या ताल्लुक है। So we have this expression that theta is equal to beta L. Beta is 2 pi by lambda. L is equal to lambda naught by 4. So you can see यहाँ पे बीटा के लिए मैं यहाँ पे जनरल लैम्डा यूज कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज इट डिपेंड्स कि हमारा जो सर्किट है यहाँ पे, लेट मी गो बैक टू द फर्स्ट स्लाइड। यहाँ से जो सिग्नल आपके पास आ रहा है उस सिग्नल की कोई भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, कोई भी वेवलेंथ हो सकती है, तो उसको मैंने लैम्डा से रिप्रेजेंट कर दिया है। लेकिन जो हमने क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर डिजाइन किया होगा, और जब हम इसको डिजाइन करेंगे हम मेक श्योर करेंगे कि इसकी जो लेंथ हो वो लेमडा नॉट बाय 4 के बराबर हो। जो लेमडा नॉट हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है। इस एक्सप्रेशन को अब हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो 2 पाई, so we know that relationship is v is equal to lambda into f, the general relationship। और यहाँ पे हम फेज वेलोसिटी यूज करेंगे, इसको मैं vp कह दूंगा, तो vp is equal to lambda into f, ओके। सो इस लैम्डा की जगह हम क्या लिखेंगे, we will write down vp divided by f, और इस लैम्डा नॉट की जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे vp divided by f naught divided by 4। so you can find out कि ये लैम्डा vp कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपके पास, तो थीटा आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई f divided by 2 f naught। नाउ दिस इज द रिलेशनशिप जो मैं डिफाइन करना चाह रहा था। यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन मार्क था, थीटा और एफ का रिलेशनशिप हमारे पास आ गया, ठीक हो गया। और इसको आप इन टर्म्स ऑफ एफ भी लिख सकते हैं। सो एफ इज इक्वल टू 2 f naught divided by pi into theta। सो नाउ जो हमने पहले फिगर ड्रॉ की थी,
जिसमें हमने अलोंग एक्स एक्सिस थीटा को लिया था। अब मैं अलोंग एक्स एक्सिस जो है एफ को लूंगा, ठीक है। सो लेट मी ड्रॉ द फिगर। दिस इज magnitude, and now this is f. now corresponding points क्या होंगे वो हम easily identify कर सकते हैं। जब थीटा की वैल्यू थीटा m होगी, कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को हम कह देंगे कि ये एफ एम पे, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट मैंने लिया था, जिसको मैं थीटा m कह रहा था, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इसको हम अब क्या कहेंगे, एफ एम कहेंगे, ठीक है। तो मैं इस ग्राफ को ड्रॉ कर लेता हूँ एंड देन वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स क्या आ जाएंगे। ये आपके पास रिलेशनशिप है, और ये हमारा क्राइटेरिया जो हमने रखा हुआ है। एक्सेप्टेबल वैल्यू हमने रखी हुई है कि गैमा एम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। सो बेस्ड ऑन दैट क्राइटेरिया, व्हाट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी जहाँ पे मुझे एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस मिलेगी, ठीक है। सो इस फ्रीक्वेंसी पे अगर हम देखें, इफ द frequency is anywhere in this region, so of course reflection coefficient will be somewhere over here, which will be more than this. So acceptable frequency हम बढ़ा रहे हैं, जैसी frequency इस जगह पे पहुंच जाए, वहां पे मुझे एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस मिल जाएगी। इस एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस की जो फ्रीक्वेंसी है, इसको हम किस सिंबल से डिनोट कर देंगे, इसको हम कह देंगे एफ। ओके। और जब व्हेन थीटा बिकम्स इक्वल टू पाई बाय 2, सो मेरे पास रिलेशनशिप क्या है कि एफ इज इक्वल टू 2f0 थीटा बाय पाई। so when theta becomes equal to pi by 2, f becomes equal to f naught. तो अगर आप इस ग्राफ को देखें, ये जो पॉइंट जब थीटा पाई बाय 2 के बराबर होगा, इट मीन्स के इन टर्म्स ऑफ एफ ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, इसको हम कहेंगे एफ नॉट, जो हमारी डिजाइन फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे हमें एग्जैक्टली जीरो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ द सिमेट्री हमारे पास, इसका मतलब है कि ये हमारे पास अपर फ्रीक्वेंसी, एंड बेस्ड ऑन दिस ये हमारे पास बैंडविड्थ आ गई। इस रीजन में अगर फ्रीक्वेंसी इस रेंज के अंदर हो, और इस रेंज को हम नाम दे देते हैं डेल्टा एफ, और डेल्टा एफ किसके बराबर होगा, डेल्टा एफ विल बी इक्वल टू एफ नॉट माइनस एफ एम मल्टीप्लाइड विथ 2। तो ये पूरी रेंज, दिस होल बैंड, बिकॉज ऑफ द सिमेट्री, तो मैंने क्या किया कि इसको डिफाइन किया है जो कि एफ नॉट माइनस एफ एम के बराबर होगा, और फिर इसको इंक्लूड करने के लिए मैंने 2 के फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर। नाउ ये जो बैंडविड्थ हम डिफाइन कर रहे हैं अब तक, इस बैंडविड्थ को वी कॉल इट एब्सोल्यूट बैंडविड्थ। इन टर्म्स ऑफ एफ, और एज वेल एज जो हमने इन टर्म्स ऑफ थीटा डिफाइन की थी, डेल्टा थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स pi by 2 minus theta m. We call these two representations as absolute bandwidth. Okay. So normally we don't make use of absolute bandwidth in practical circuits. We make use of another uh, variant of bandwidth, जिसको हम कहते हैं fractional bandwidth. Let's find out कि ये absolute bandwidth से हम fractional bandwidth कैसे find करेंगे. So fractional bandwidth is usually calculated in terms of frequency. तो मैं in terms of frequency define करूंगा कि अगर आप एब्सोल्यूट बैंडविड्थ को लें, जिसको हमने डेल्टा एफ से डिफाइन किया हुआ है, और इसको आप डिवाइड करें विद द डिजाइन फ्रीक्वेंसी, जिसको हमने एफ नॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और फिर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास परसेंटेज में आ जाएगी. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज फ्रैक्शनल बैंडविड्थ.
अब इसको देखते हैं कि एंड रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास। सो डेल्टा एफ को हम डिफाइन कर चुके हैं यहाँ पे। डेल्टा एफ की जगह हम ये लिख सकते हैं, सो डेल्टा एफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स नॉट minus fm, this whole is divided by f naught multiplied with 100. Then you can simplify this, so this becomes 2 minus 2 fm divided by f naught into 100%. Now in place of ये fm जो हमने डिफाइन किया हुआ है, इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे? सो fm के लिए हमें ये एक्सप्रेशन लिखी हुई है, fm की जगह हम ये लिख सकते हैं 2 times f naught theta m by pi. So this becomes 2 minus 2, so इसके साथ 4 हो जाएगा, so 4 times theta m divided by pi हो जाएगा। And finally जब हम फ्रैक्शनल बैंडविड्थ फाइंड करेंगे, so you can see के बाकी तो सारे कांस्टेंट फैक्टर हैं 2, 4, pi, so this is the variable, so we must know what is theta m। और theta m हम कैसे फाइंड करेंगे वो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, कहाँ पे, इस एक्सप्रेशन पे हम थीटा एम की जगह क्या लिखेंगे, कॉज इनवर्स हमें लेना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन का कॉज इनवर्स ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा, लेट मी, ओके, सो यहीं पे लिख लेते हैं। तो क्या रिजल्ट आ गया, 2 minus 4 डिवाइडेड बाय पाई, और थीटा एम की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉज इनवर्स ऑफ, किस चीज का इनवर्स हमें लेना है, गैमा एम डिवाइडेड बाय 1 minus gamma m square whole under the root into 2 multiplied with z naught zl divided by the absolute of zl minus z naught. So fractional bandwidth हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। So fractional bandwidth जो हम फाइंड कर रहे थे, उसका फाइनल रिजल्ट हमारे पास है। So let me quickly solve one example relevant to this bandwidth behavior. So we are asked to design a single section quarter wave transformer to match a 10 ohm load to a 50 ohm transmission line at design frequency given है 3 gigahertz and we are also given the information about we need to find out the percent bandwidth जिसको हम fractional bandwidth भी कहेंगे। यहाँ पे क्योंकि percentage wise express किए हुए तो fractional bandwidth and percent bandwidth means same thing. To determine the percent bandwidth for which SWR standing wave ratio is less than or equal to 1.5. So based on this given information हमने क्या फाइंड करना है, एक तो क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर को डिजाइन करना है, इट मींस कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस फाइंड करनी है, तो Z1 फाइंड करना है। तो Z1 हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं कि इट मस्ट बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ Z0 ZL अंडर द रूट। सो Z0 जो है वो 50 है, ZL जो है वो 10 ओम है, सो दिस Z1 आपके पास आ जाएगा 22.36 ओम। सो हमने एक क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर जिसकी लेंथ हमने रखनी है लैम्डा बाय 4,
सो ये हमारे पास ZL इज इक्वल टू 10 ओम है, ये Z नॉट इक्वल टू 50 ओम है, और ये जो Z1 है ये हमने फाइंड कर लिया है 22.36। ऑफ कोर्स इसकी जो लेंथ हमने रखी है, फ्रीक्वेंसी हमें पता है 3 गीगाहर्ट्ज, तो इस 3 गीगाहर्ट्ज से आप लैम्डा नॉट फाइंड कर लेंगे, और अकॉर्डिंगली फिर इसकी लेंथ आप कितनी रखेंगे, लैम्डा नॉट बाय 4। ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट द बैंडविड्थ? बैंडविड्थ के लिए हमें ये क्राइटेरिया गिवन है। सो दिस स्टैंडिंग वेव रेशियो को यूज करके हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, हमारा क्राइटेरिया मैंने इसको रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के हिसाब से एक्सप्रेस किया हुआ है कि ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, लेकिन इस प्रॉब्लम में मुझे जो एक्सेप्टेबिलिटी गिवन है वो इन टर्म्स ऑफ स्टैंडिंग वेव रेशियो गिवन है। बट वी नो दैट स्टैंडिंग वेव रेशियो एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज दे आर रिलेटेड टू वन अनदर, और ये ऑलरेडी हम मे बी चैप्टर 2 में कवर कर चुके हैं कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट is equal to standing wave ratio minus 1 divided by standing wave ratio plus 1. So इस वक्त जो हमें गिवन है कि स्टैंडिंग वेव रेशियो जो है 1.5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस ये जो वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ इससे मेरे पास आ जाएगा गामा m। सो गामा m इज इक्वल टू 0.2। तो जब आप इन क्वेश्चन गिवन है कि स्टैंडिंग वेव रेशियो लेस देन इक्वल टू 1.5 का मतलब ये है कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो है वो आपके पास लेस देन इक्वल टू माइनस 0.2 होना चाहिए। ओके, सो वंस यू हैव दिस इंफॉर्मेशन, अब हम फाइंड कर सकते हैं परसेंटेज बैंडविड्थ which is equal to 2 minus 4 by pi cos inverse of gamma m 1 minus gamma m 2 z naught z। ठीक है, तो अगर आप इस एक्सप्रेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करें, so delta f divided by f naught multiplied by 100% is equal to 2 minus 4 by pi cosine inverse of 0.2 divided by 1 minus 0.2 square whole under root multiplied with 2 under root z naught zl divided by zl minus z naught absolute. So with help of a calculator you can easily find out this thing and then you can find its cos inverse। इसको अगर आप फाइंड करेंगे तो ये तकरीबन आपके पास आएगा 29%। तो हमारे पास जो क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर हमने डिजाइन किया हुआ है इसकी परसेंट बैंडविड्थ होगी 29%। Okay, so we are about to finish this session. I will take a 10-minute break, okay? I need 10-minute break, so see you after 10 minutes. Okay, sir.